Yes, students, good morning. I welcome you all in the political science class. Yes, beta, we are doing chapter democratic resurgence. Okay, under this chapter, we had already discussed about two renowned personalities. One is Ram Manohar Lohia, and other one is Jayaprakash Narayan. Now we are discussing another renowned personality. The name of this personality is Pandit Deendayal Upadhyay. We had discussed regarding his early life, his education, and about his mysterious death. Now we are going to discuss about his love for writing, which speeches he had given, and about his books and his theory. Okay, which is based on integral humanism. Okay, let's start. His speeches and writing. First of all, we are going to discuss about his books and his speeches. राष्ट्र जीवन समस्याएं और the problems of national life. This book was published in 1960. What is the name of the book? राष्ट्र जीवन समस्याएं और the problems of national life. नेक्स्ट है एकात्मा मानववाद एकात्मा मानववाद और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. It got published in 1965. Next one was Political Diary. It published in 1968. And next was राष्ट्र जीवन की दिशा और The Direction of National Life. It got published in 1971. So these are his books which got published time to time. In 1960, राष्ट्र जीवन समस्याएं, 1965 Integral Humanism, Political Diary, 1968 and in 1971 राष्ट्र जीवन की दिशा और Direction of National Life. Students, you have to remind them the names of his books. Okay. Next, we will discuss about his theory, Deen Dayal Upadhyay and Integral Humanism. We are going to discuss his theory, his principles, which are based on integral humanism. As we have already discussed, he has written a book on integral humanism also. What were his views? जिंदगी में विविधता व बहुलता है, पर हमने हमेशा इसके पीछे की एकता को खोजने का प्रयास किया है. ठीक है. His theory is based on his views. Pandit Deendayal Upadhyay was a philosopher. He was a philosopher, he was a sociologist, economist and politician. ठीक है. And variety of qualities he was possessing. Philosophy represented by him is called integral humanism. 1965 में उन्होंने अपनी philosophy दी हमें जिसका नाम था integral humanism. ठीक है. Which means the process of development begins from the bottom and moves at top. तो उनका क्या कहना था कि जो डेवलपमेंट है वो बॉटम से शुरू होके टॉप तक जाती है. जैसे एक प्लांट है, उसकी रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तभी वो अच्छा ग्रो करेगा. तो इसी तरह अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी हम कहते हैं कि नींव मजबूत हो गई तो वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई. सेम इन द केस उन्होंने भी यही कहा कि अगर हमने डेवलपमेंट करनी है किसी कंट्री की तो लोअर लेवल जो है, बॉटम लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. द रूट्स ऑफ आवर नेशन कौन सी हैं? रूरल इंडिया. जैसे महात्मा गांधी भी यही कहते थे, ठीक है, कि हमारा असली भारत गांव में बसता है. ठीक है. तो उन्हीं की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस थे दीनदयाल उपाध्याय भी. इन्होंने भी यही कहा कि असली भारत अगर आपने देखना है तो कहाँ है वो? रूरल इंडिया में. So the development of a society and country must begin from the rural areas. तो सबसे पहले क्या जरूरी है हमारे लिए कि हमने रूरल एरियाज को डेवलप करना है. ठीक है. उसके बाद हम अर्बन एरियाज की तरफ जा सकते हैं. ठीक है. तो पता चला आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या कहा है उन्होंने. तो अलग अलग बेटे जो हम पर्सनैलिटीज ये स्टडी कर रहे हैं इनकी अलग अलग थ्योरी है. जैसे राम मनोहर लोहिया की हमने चार भुजा उनका सिस्टम था वो हमने पढ़ा. ठीक है. उसके बाद जो हमने जयप्रकाश नारायण की सर्वोदया के बारे में पढ़ा. तो और हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय है इनकी थ्योरी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उनके बारे में पढ़ा. ठीक है जी. सो आगे दीनदयाल जी क्या कहते हैं? which was intended to present an indigenous social economic model. तो उन्होंने क्या दिया हमें? प्रेजेंट करा, एक मॉडल प्रेजेंट किया, इंडिजीनियस सोशल इकोनॉमिक मॉडल. इंडिजीनियस का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल, लोकल मतलब. ठीक है. कस्टम ट्रेडिशंस पे जो बेस्ड होता है वो सोशल और इकोनॉमिक मॉडल दिया इन विच ह्यूमन बीइंग रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट.
और जहाँ पे डेवलपमेंट किसकी मस्ट है, किसकी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन बीइंग की। The aim of integral humanism is to ensure dignified life for every human being. Integral humanism क्या कहता है कि हर बंदे को रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलनी बहुत जरूरी है while balancing the needs of the individual and the society. और पर्सन कैसे लाइफ स्पेंड करता है सोसाइटी में, वो अपनी नीड्स पूरी करता है, सोसाइटी की नीड्स पूरी करता है, तो इसी तरह उसकी जो लाइफ है वो स्पेंड होती चली जाती है. बट मेन थिंग इज दैट ही शुड हैव रिस्पेक्ट, ही शुड हैव डिग्निटी इन हिज लाइफ. It supports sustainable consumption of natural resources so that those resources can be replenished. अब वो एक और बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग अपनी जरूरतों को, सोसाइटी के जरूरतों को पूरा कैसे करता है, विद द यूज ऑफ रिसोर्सेज. और ये जो रिसोर्सेज है बेटा, उनकी सस्टेनेबल यूज होना चाहिए. सस्टेनेबल का मतलब है रैशनली यूज करना, लॉजिकल यूज करना, ठीक है, इस तरह यूज करना कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के रखें, ठीक है, और इस तरह यूज करना कि रिसोर्सेज को रिप्लेनिश होने के लिए भी टाइम मिले, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है उनकी थ्योरी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बीच में आती है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का बेस क्या है, ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो हमारा बॉटम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, रूरल एरियाज को डेवलप करना है. सेकंड उनका पॉइंट आ रहा है कि ह्यूमनिज्म में सबसे मेन कौन है, ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट कैसे है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है, सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर रहा है, रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, पर रिसोर्सेज को उसने कैसे यूज करना है, सस्टेनेबल कंजम्पशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की, ठीक है. और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एनहांसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. अगर हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये पॉलिटिकल लेवल पे एनहांस करता है, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम को एनहांस करता है, ठीक है. As it seeks to promote diversity, it is best suited for a country as diverse as India. अगर हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो ये डाइवर्सिटी बेस्ड है और इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, तो इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है. अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट ह्यूमन काइंड कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. ह्यूमन काइंड में 4 पार्ट्स हैं, माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट और सोल, ठीक है. ह्यूमन के 4 मेन पार्ट्स हैं, माइंड है, बॉडी है, सोल है और इंटेलेक्ट है, ठीक है. इवन दो देयर इज डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बट स्टिल इट इज द सोल और आत्मा, इट इज कॉमन अमंग ऑल. चाहे हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है पर एक चीज सब में कॉमन है, क्या है वो, सोल, ठीक है, आत्मा. तो ये सब में कॉमन है. It is important to develop all elements of humankind. और जो चारों एलिमेंट इन्होंने बताए हैं, उन्होंने ये कहा है कि सबको डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी हमारी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगी. चाहे मटेरियल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है तो सोसाइटी के लिए, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे यहाँ पे योगा वगैरह दिखाया हुआ है, ठीक है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए योगा बहुत जरूरी है. The philosophy of integral humanism is based on the following 3 principles. प्राइमेसी ऑफ होल नोट पार्ट, ये होली जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, पार्ट्स में नहीं. सुपरमेसी ऑफ धर्मा, ठीक है, धर्मा को सबसे ऊपर समझो. ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी को अपने डिसीजन लेने का राइट जो है वो होना चाहिए. तो उन्होंने ये बताया कि जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, ठीक है, वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है बेटा. आई होप उनकी जो थ्योरी है ये दीनदयाल उपाध्याय की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ऊपर बेस्ड है, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच बेटा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.